See, last class we learned about 4 feature in between. Okay. Now we are doing reissue between. All of you take page 241, sum number 39. Page 241, sum number 39. Sum number 39. कृष्णराज राव को फॉलो करते कृष्णराज राव एंड सीज लॉग एंड सीज वो बनने का पूरा लाइफ इन एंड आउट रियलिटी वो बंदा लोडा के साथ केस किया now scam हुआ था डायमंड की तुमको फोन करना ना वो वो 1.5 करोड़ बोल रहे हो बहुत गंदा प्राइस था वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 4.5 अच्छे से कोड आएगा मैक्सिमम थोड़ा खराब हुआ तो ऐसी वापस बनाने 50 लाख करोड़ ऐसी उधर उड़ा देते दैट इज मार्केट यू ऑलवेज सबको मानना यू शुड नाउ see page 241 sum number 39 Rangunwala company issued 1000 shares of 100 each payable as 30 on application, 50 on allotment, 20 on final call. ये भी आपने एक सब ये वाला 12th में किया हुआ है अगर याद होगा तो this is application, allotment and first and final call. 8 4-footed 100 shares of 100 each allotment time. That's the rate. When are you forfeiting the shares? At allotment time. So allotment time का मतलब है कि यहाँ allotment time का मतलब है कि you are cancelling the shares after allotment. Are you listening? You are cancelling the shares after allotment. Is this clear? Abhi, read further. Give on which 20% of first call is not yet called up. That's another rate. Allotment के वक्त उसको उठा दी. अब थोड़ा common sense वापरो. उसको allotment के वक्त क्यों उठाया जाएगा? उसको पे नहीं किया है. क्या पे नहीं किया है? एप्लीकेशन तो सब करते हैं.
अभी give necessary journal entries relating to forfeiture and reissue. Just do that correction. Forfeiture and reissue of shares in each of the following alternative cases. forfeiture सबका सेम ही रहेगा. forfeiture एक ही मारो, फिर 3 केस का 3 reissue एंट्री करो. तो पहले forfeiture एंट्री कर लेते हैं. मुझे बताओ प्रीमियम है कुछ? No premium. So what is your entry? Equity share, capital debit to call in arrear to share forfeiture. बराबर है? Capital to CIA to share forfeiture. मुझे बताओ 100 shares of 100 each. Allotment time. So how much I should multiply my capital by? 80. Why 80 and not 100? Did you understand? क्योंकि अलॉटमेंट टाइम पे ही उड़ा दिया उसको. बराबर है? जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हो गया कैपिटल. प्लीज फोकस. आफ्टर दैट हाउ मच शुड आई राइट इन कॉल इन अरियर? सो वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड ही डिड नॉट पे व्हाट? अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का 50 रुपए उसने पे नहीं किया, तो ऑब्वियसली यही उसका कॉल इन अरियर रहेगा. यस और नो? और बाकी 30 जो उसने भरा रहेगा वो हमने हड़प लिया. तो 100 into 30, what is your forfeiture amount? 3000. Is this part clear? Am I right? Correct? Correct. समझा पक्का? Now, that was your forfeiture entry. That is going to remain common. So no need to pass forfeiture entry again and again. What you need to do is for 3 cases, you do reissue entries and you do transfer entry. Reissue के साथ transfer आएगा. तो पहला scenario देखो, case 1. If 40 of these shares were reissued as 80 paid up for 90 per share. मैंने आपको बोला था 80 paid up, 80 called up, 90 paid up, 90 called up. It means it is one and the same. That indicates the stage. So in case 1, how many shares are getting reissued? 40 shares आप reissue कर रहे हो as 80 paid up for 90 per share. 80 का शेयर 90 में ऑफर किया जा रहा है. तो this is reissue at the end or reissue in between? How do you know that? 80 paid up. 80 paid up, 80 called up मतलब at allotment time. 100 paid up, 100 called up या fully paid up, fully called up. That means at the end. Is this clear? So what is your reissue entry? It is bank 80 का 90 में है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 1 शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. बराबर है? बैंक में मेरे हिसाब से आएगा 40 रीइश्यू किया, तो 40 into 90 that is 3600. Capital will be 40 into 80 that is 3200 and this is 40 into 10 that is 400. बराबर है? Immediately when you reissue, you need to pass a transfer entry. Transfer entry क्या है आपका? Share forfeiture to capital reserve, right? Share forfeiture to capital reserve. Can I transfer full credit minus debit 3000? Why? Can I compare 100 shares का profit with 40 shares का loss? No. So what I need to do is cross multiplication. इधर लिखना है equity share and share forfeiture. If 100 share का profit is 3000, then what is 40 share का profit? Cross multiply. I think that comes to 1200. 1200 is 40 का profit. How come? Did you understand? 100 share का हड़पा हुआ पैसा 3000 है, तो 40 shares का कितना हुआ? 1200. 1200 तो प्रॉफिट है, माइनस लॉस है कुछ नहीं है, तो फिर हाउ मच यू शुड ट्रांसफर? 1200 माइनस nil, that is 1200. Am I right? 1200 minus nil, that is 1200. Is this clear? Hello? Got it? Understood? Now think and tell me one more thing. That what would have been wrong if I would have transferred full 3000? That is not comparable first of all. और बाकी 60 shares पे अगर लॉस हुआ तो forfeiture में पैसा बचेगा नहीं.
कैपिटल रिजर्व से निकालना पड़ेगा, जो नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व का पैसा सीधा एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? शेयर forfeiture is still in liquid form, cash form. Now, moving ahead to case 2. What is case 2 read? उसमें forfeiture entry same ही है, but if 40 of these shares were issued as 80 called up at 80 per share. 80 called up 80 per share मतलब stage. इसी स्टेज पर इश्यू किया, 80 के स्टेज पर इश्यू किया, और क्या प्राइस पर इश्यू किया? 80 पे इश्यू किया। तो व्हाट इज योर रीइश्यू एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 40 to 80, am I right? 40 to 80, इधर भी 3200, इधर भी 3200, बराबर है? Hello? And then you need to transfer, तो again share forfeiture to capital reserve. मुझे बताओ, can I compare 100 का profit with 40 का loss? No. So what is 40 का profit? 1200 minus 40 का loss कुछ भी नहीं है, तो I can transfer full 1200. Yes or no? बराबर 6. हेलो, समझ में आया? अभी केस 3, what is the difference in case 3 read? लोग ने क्या दिया है केस 3 में? If 40 of these shares are issued as 80 paid up for 70 per share. 80 paid up for 70 मतलब इस स्टेज पे ही हो रहा है, but 70 per share. तो 80 का शेयर क्या भाव पे जा रहा है? 70 रुपए। पहले प्रीमियम पे गया, फिर पार पे गया, अभी डिस्काउंट पे जा रहा है। तो अभी एंट्री क्या होगी? बैंक शेयर forfeiture to what? इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा? 40 to 70, 2800। कैपिटल में आएगा 40 into 80, that is 3200, और इधर शेयर forfeiture में 40 into 10, that is 400. Am I right? And then you have share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture to capital reserve. This time I have a profit of 1200, but I have a loss of 400. So how much will I transfer? Is this clear? याद आया? सेम सब याद था हमने 12 में। This is called reissue in between. Reissue in between. You can't compare 100 का profit with 40 का loss, okay? So cross multiply and get your 40 shares का profit and subtract it with 40 shares का loss. Sorted? पक्का पक्का? समझा? All of you now take some number 14 sum ले लो, page 236, sum number 14, page 236, sum number 14. 14 sum, देखो ध्यान से, beautiful company limited, this is a module sum. 14 sum, page 236. Beautiful company limited issued 30,000 equity shares of 10 each, payable as 3 on application, 5 including 2 premium on allotment, and 4 on first and final call. So what's your subdivision? It is 3, 5, 4. बराबर है? हेलो, application, allotment, first and final call. Read. Money due on all the shares were fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. All these 1500 shares, 1500 कैसा? 500 राम का, 1000 शाम का. All these 1500 shares were forfeited. And out of the shares forfeited, 1250 shares including whole of Ram shares, मतलब राम का पूरा 500 और शाम का कितना रहेगा? 750 रहेगा, तो जाके 1250 होता है, क्योंकि ओरिजिनली राम का 500 था, शाम का 1000 था, 1500 शेयर्स उड़ा दिया,
रीइश्यू में 1250 शेयर्स रीइश्यू किया, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम, मतलब 500 राम का पूरा रीइश्यू है, शाम का 750 रीइश्यू किया. At price of were subsequently reissued to Jatu as fully paid up at a discount of 2 per share. Fully paid up मतलब एंड में रीइश्यू किया at a discount of 2, मतलब 10 का 8 में किया. 10 का 8 हुआ ना, at a discount of 2, face value 10 था. Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of shares. पूरा सब नहीं करना, खाली forfeiture और reissue और रिकॉर्ड करना है ट्रांसफर एंट्री. समझ में आया क्वेश्चन? Only forfeiture, reissue and transfer entry. Is it clear? Hello? Try कर सकते हो? दिमाग लगाओ, चलो. What happened? Don't waste time. चलो. Question समझ आया? पहले forfeiture entry with premium है, उसमें राम ने अलॉटमेंट नहीं भरा है और श्याम ने अलॉटमेंट भरा है. प्रीमियम का भी लॉजिक अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई. पहले forfeiture, फिर reissue, फिर ट्रांसफर. टेक 5 मिनट्स. तीन ही एंट्रीज का सम है, जस्ट 3 एंट्रीज. फटाफट. forfeiture भी एंट्री है. forfeiture, reissue दोनों एंट्री है.
बैलेंस शीट बात में करो, बैलेंस शीट फॉर्मेट अलग है, शेड्यूल 6 उसने किया ही नहीं। बैलेंस शीट तुम्हारा 12th वाला फॉर्मेट नहीं है, अलग है। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, पूरा फॉर्मेट ही अलग है। वर्टिकल वर्टिकल वो अभी वो लोग मार्च में करेंगे आफ्टर बोर्ड्स। अभी करवाऊंगा ना, सब मिक्स हो जाएगा। देखो बोर्ड पे टाइम आप मुझे बताओ, when you cancelling the shares, how many shares have been cancelled? 1500 shares you are cancelling. At what stage? At the end. बराबर है? हेलो, अभी पहला स्टेप कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? हाँ 15,000 आया। हेलो, आराम से देखो बोलो, प्रीमियम का रूल क्या? वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। राम ने क्या भरा था? राम ने सिर्फ एप्लीकेशन भरा था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं भरा। श्याम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भरा था, फर्स्ट कॉल नहीं भरा था, राइट? तो अपना प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ था ना, तो श्याम ने तो अलॉटमेंट भरा है तो प्रीमियम भरा है, राम ने नहीं भरा है, तो नॉट रिसीव शुड बी डेबिट, तो फेक प्रॉफिट। तो किसका प्रीमियम डेबिट करो सिर्फ? राम का। तो 500 इंटू 2 सिर्फ 1000 है डेबिट, सही बात? हेलो, समझा? अभी कॉल इन अरियर दोनों का जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कैसे करने का? राम ने क्या नहीं भरा? 5 और 4। कॉल इन अरियर इस कचरा पेटी, उसमें कोई कैपिटल प्रीमियम का भेदभाव नहीं है। कॉल इन अरियर मतलब जो भी नहीं भरा वो सब कॉल इन अरियर। तो कहना है से राम का कॉल इन अरियर आर 500 into 9 4500 एंड श्याम का कॉल इन अरियर, श्याम ने खाली फाइनल कॉल नहीं भरा, तो 1000 into 4 4000, तो 8500, सही बात? तो 8500 is my call in arrear and how much is my forfeiture? 7500। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें राम का कितना है और श्याम का कितना है? राम से कितना हड़पा है पता है आपको? 3 रुपया ऑन 500 शेयर, क्योंकि उसने तो खाली एप्लीकेशन भरा था। और श्याम से कितना हड़पाया आपने? श्याम से कितना हड़पाया आपने? आपने ये 3 और ये 3 की 5, 4 फीचर में कैपिटल का प्रॉफिट रहता है ना, तो 1000 into 6, 6000, टोटल है 75। मैचअप हो गया, ये एंट्री आया पक्का? गाड़ी। देन वी हैव रेशियो एंट्री, तो बहुत सिंपल है, 1250 शेयर्स रेशियो हो रहा है, क्या प्राइस पे हो रहा है? 8 रुपए में। 1250 into 8
1250 इंटू 10 12,500 और इधर 2 रुपया इज 2500 और इधर 10,000 बराबर है। अब आता है गम्मत, कैन आई ट्रांसफर 7500 माइनस 25? डिड आई रीइश्यू ऑल द शेयर्स? आई रीइश्यूड ओनली सम ऑफ द शेयर्स, राइट? जिसमें राम का तो पूरा है लेकिन श्याम का 750 बराबर है। तो राम का मैं पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं। राम का पूरा प्रॉफिट कितना है? 1500। बट श्याम का मैं पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं? नहीं, आई नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इक्विटी शेयर्स एंड शेयर फोरफीचर। अभी क्या ना, अगर 1000 शेयर का प्रॉफिट 6000 है तो 750 का कितना? 4500। तो बेसिकली माय टोटल प्रॉफिट व्हिच आई कैन टेक फॉर ट्रांसफर इज, राम का कितना 1500 और श्याम का कितना 4500 माइनस द लॉस दैट इज 2500। so this is I think 3005। ये आया कि नहीं आया? वन सेकेंड रीइश्यू 1250 शेयर्स है। इसमें राम का कितना है? 1250 में 500 पूरा और श्याम का 700। अगर मैं पूरे 1500 शेयर रीइश्यू कर देता तो मैं क्या करता? क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। अब मैं पूरे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं? राम का पूरा कर रहा हूं बट श्याम का 750। तो मैं राम का तो पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस कर सकता हूं। पूरा लॉस तो इसमें ही है, तो राम का पूरा प्रॉफिट ले लो। राम का पूरा प्रॉफिट कितना है? 1500। वो तो सेट है। राम का पूरा प्रॉफिट 1500 है माइनस पूरा लॉस इसके अंदर पड़ा हुआ है 500 into 1000, करेक्ट? 500 शेयर्स थे राम के, यस और नो? तो राम का पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस, लॉस तो साइड पर रखो, बट राम का पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं। क्यों राम का पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं? अब रेशियो हो गया। श्याम का पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं? क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सब शेयर्स रेशियो नहीं हुआ। श्याम का कितना शेयर्स रेशियो हुआ? तो अभी आपने किया ना पिछले समय 100 का 40 का 100 का 3000 का 40 का कितना 1200। तो इधर 1000 शेयर का 6000 है, ये रहा। तो 750 का कितना? 4500 है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हेलो, तो ये प्रॉफिट है किसका? श्याम का। ये प्रॉफिट है किसका? राम का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 6000 माइनस लॉस 2500। इज दिस क्लियर? इंडिविजुअली देखो, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इंडिविजुअली देखो। ये राम, ये श्याम, बराबर है। राम का पूरा प्रॉफिट 1500 था, अग्री करते हो? फोरफिटेड अमाउंट 1500 था माइनस राम के शेयर्स कितने थे? तो 500 के हिसाब से 2 रुपए का लॉस था, तो 1000, तो 1500 माइनस 1000 कितना हुआ? 500। इतना राम का ट्रांसफर होगा। श्याम का कितना प्रॉफिट मैं ले सकता हूं ट्रांसफर के लिए? 6000 की 4500, क्योंकि 750 शेयर्स हुए हैं ना रीइश्यू। तो 4500 का प्रॉफिट है माइनस 750 into 2 1500 का लॉस है। तो कितना हुआ ट्रांसफर? 3000। तो टोटल कितना ट्रांसफर होगा? 3500। दैट इज आल्सो यू कैन कंसीडर। राम का पूरा प्रॉफिट माइनस पूरा लॉस, श्याम का 750 का प्रॉफिट माइनस 750 का लॉस। ऐसे करो, एनी वे यू कैन डू। स्टिल कंफ्यूजन? ये करने से बेटर है ऐसा कर लो। ये वर्किंग नोट्स बना देना, 1 2 3। शो दीज वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स दिखा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोरफीचर, दिस इज शेयर फोरफीचर, this is call in arrear, this is share forfeiture, this is cross multiplication। गया भेजे में कि नहीं? Still confused? बोलो। सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस करते हो। इधर मैंने क्या किया? राम का प्रॉफिट माइनस राम का लॉस प्लस श्याम का पूरा प्रॉफिट नहीं 750, उतना ही रेशियो। और लॉस तो ये 750 का ही है, तो लॉस साथ में ले लो और प्रॉफिट दोनों का अलग अलग ऐड कर लो, तो मिल गया ना। ये 1500 और ये 450, तो 6000 माइनस 2500।
चलो गलू दिमाग में ट्राई 13 मैंने आपके टेस्ट में पूछा था शेयर के टेस्ट कल पोजीशन सबमिट करना है उसका एक्शन लोगों को वापस पेपर लिखना है ट्राई करो क्वेश्चन 13 ट्राई करो खुद से प्रेफरेंस है क्वेश्चन में तो क्या यूज करना है नाम प्रेफरेंस डोंट यूज इक्विटी यू हैव टू यूज प्रेफरेंस कम ऑन स्टार्ट ऐसे बोले एंड में नहीं है 75 पेड अप कॉल्ड अप 75 मंगवाया उसमें से बोलते 50 नहीं है 75 मंगवाया उसमें से हाँ 50 नहीं भरा है 25 भरा है 25 एप्लीकेशन भरा है लेकिन एवरीथिंग इज हैपनिंग व्हेन एट द एंड और इन बिटवीन 75 कॉल्ड अप पे हो रहा है सब एवरीथिंग इज हैपनिंग एट 75 कॉल्ड अप एवरीथिंग इज हैपनिंग एट 75 कॉल्ड अप
करो डिस्कस। ग्राउंड है वो भी आ रहे ऑटो मिल गया देखो पढ़ो now 13 sum. Mr. Long was a holder of 2000 preferences of 100 each, on which 75 was called up, and he could not pay his dues on allotment and first call of 25%. पहला हिंट है कि 75 कॉल्ड अप था, तो ये सब मसाला कब हो रहा है? एंड में हो रहा है कि 75 में हो रहा है? उसमें उसने 25 रुपया फर्स्ट कॉल का और 25 रुपया अलॉटमेंट का नहीं भरा, तो क्या भरा? 25 रुपया एप्लीकेशन। तो बेसिकली इट इज 25 बराबर है। 50 रुपया नहीं भरा है, 25 भरा है, बराबर है। अभी 4 फीचर का एंट्री will be equity share capital, preference share capital to call in arrear to share forfeiture. कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 75 के 100। Why? 75 के स्टेज पे हो रहा है ना, सब डिवीजन समझ आया कि नहीं? 25 25 25 25 यहाँ हो रहा है। ये फर्स्ट कॉल, ये बाकी है अभी सेकेंड कॉल, ये अलॉटमेंट और ये एप्लीकेशन ऑडिट। अभी आपका एकदम चिल करेगा। सुनो, इधर आपका 75 कॉलम पे सब काम हो रहा है, बराबर से कि नहीं? तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बोलो? 75 टू 2000, 75 टू 2000, दैट इज 1,50,000। तो कॉल इन अरियर में उसने ये नहीं भरा, तो 2000 into 50 1 लाख, और ये भरा तो 2000 into 25 50,000, तो 1,50,000 1 लाख and 50, बराबर से कैपिटल टू सीआईए टू 4। अभी रीइश्यू कितना शेयर्स आपने किया? 1500। डिड नॉट रीइश्यू ऑल, जस्ट 1500 शेयर। ये रीइश्यू एंट्री कितने का करने का? 1500। और उधर क्या दिया 1500 का? 75 कॉल्ड अप एट 65%। 75 का 65 में क्या, तो 10 का लॉस हुआ। एंट्री क्या होगा? बैंक शेयर फॉर फीचर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
बैंक में क्या होगा 1500 into 65 112500 1500 into 65 97.5 हाँ 1500 into 65 97,500 1500 into 10 is 15,000 and total capital will become 1500 into 75 112500 बराबर से ये मिला अब can I do credit minus debit directly because why I did not ratio all the shares so you need to do a simple cross multiplication 2000 शेयर का प्रॉफिट 50,000 है तो 1500 का कितना 37,500 क्या पूरा 37,500 ट्रांसफर कर दूं नहीं 37,500 तो प्रॉफिट है माइनस द लॉस तो 37,500 minus 50,000 that is 22,500 ultimate answer of transfer is 22,500 ये मिला समझा अभी समझा तभी नहीं समझा तो पक्का कितना लोग को नहीं आया ये बाकी सबको आया चलो बढ़िया अभी देखो समझा अभी ऑल ऑफ यू रुको हमने वो सब किया हुआ है ना 9 10 11 12 भी हो गया है ना अच्छा हाँ ये वाला करो क्वेश्चन 15 करो कुछ से क्वेश्चन 15 में मॉड्यूल ही है 15वां सम करो चलो 14 तो किया ना 14 दोनों तीनों मॉड्यूल ही हो 13 14 15 तीनों मॉड्यूल अरे सर गेम करो जो बस तक हाँ तो वो उतना ही रखो बटन क्यों दबाए मेरे को चेक करना था हुआ कि नहीं सही रखने का आदमी होता है वो अभी थोड़े टाइम बाद उधर बर्फ बनेगा रुको नहीं हमको चले आप ऑर्डर क्या करना શું મંગાવો 10:30 ની બેસ હો તો પછી મંગાવો પેલા ખાવાનું મંગાવો ખાવા બીજી મંગાવી દે 11 નીચે મંગાવો अबे 10:30 बजे मंगवा के वड़ा पाव खिला के भेज दी चलो चलो करो फटाफट करो 15 करो फटाफट 5 मिनट में करो फटाफट कम ऑन ये स्टूडेंट कम ऑन फायर होने चाहिए
ये बोल बैंकिंग का 2,000 shares, B holds 4,000 and C holds 3,000. A ने खाली 2 रुपये एप्लीकेशन भरा भाग गया, B 2 और 3 भरा भाग गया और C 2, 3, 3 भरा भाग गया. These shares were forfeited and reissued at 12. तो पहला तो forfeit करो. तो forfeiture is capital to CIA to share forfeiture. Capital कितने का उड़ाओगे? 6,000 शेयर. पैसा सॉरी 2 + 4 + 3 9,000. कैपिटल कितने उड़ोगे? 9,000 शेयर इंटू 10 90,000 हुआ. 90,000 इज कैपिटल. अभी कॉल इन एरिया कैसा करने का? ए का 2,000 शेयर पे 8 रुपए 16,000 हुआ. बी का 4,000 शेयर पे 5 रुपए 20,000 हुआ. और सी का 3,000 शेयर पे 2 रुपए 6,000. ऐड करो सबको. 16, 20, 36, 42,000. 42,000 इज कॉल इन एरियर. फॉरफीचर आएगा 58, 90,000. 42, 48 और 90 मिला. फिर रीइश्यू करने का क्या प्राइस पे? क्या 12 रुपए मतलब प्रीमियम है. तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. बैंक में आएगा 9,000 into 12 1 लाख. कैपिटल में आएगा 9,000 into 10 90 और प्रीमियम आएगा 9,000 into 2 18,000 बराबर 6. अब ट्रांसफर करना है
तो सारा का सारा शेयर्स रीइश्यू कर दिया तो टेंशन ही नहीं है. यू कैन डू क्रेडिट माइनस डेबिट. डेबिट तो है ही नहीं, तो कितना होगा 48,000 माइनस 0 48,000. शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व इज 48,000. इज दिस क्लियर? हाँ लाख लेकिन अरे ऐसा दिया है ना, क्यों अलग कर रहा है? एंड पे बोले क्या हो रहा है? इधर ही हो रहा है. इसका इधर किया, इसका इधर किया तो अलग. ये सबका एंड में ही बोल दिया. इसमें भी एंड में हो रहा है. एंड में हो रहा है तो क्लब कर सकते. दो बार दिला दूंगा. बीच में हो रहा है तो ट्रांसफर अमाउंट सही इधर हो रहा है, और पीछे इधर हो रहा है कैपिटल पार्ट. रेशियो भी इधर हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? इधर रेशियो है तो कैपिटल है वगैरह को बोल रहा है कि ये आगे भी देना नहीं है. इधर करना है तो उसको पार्ट से करना है. अभी सुनो ध्यान से. All of you take sum number by last sum. JHP Limited is a तुम लोग ये चिल्ला रहा हो तो मैं क्या बोलूं. चलो इसीलिए क्वेश्चन 5 there is a proverb look before you leap. उठका मारने से पहले आराम से सोचने का. देखो क्वेश्चन 5 देखो. इट्स नॉट दैट बिग, डोंट वरी, इतना निर्दय नहीं है. ये लिमिटेड लास्ट सम सुनो ध्यान से. अच्छा अभी अपना छोटा सा एक कंसेप्ट बाकी रहता है. इसके बाद जो मैं लेगा इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे बेसिकली योर शेयर्स विल बी डन and I am going to start with debentures. So don't remain absent on Friday. It's a new concept of debentures जो आपको 12th में नहीं था. हाँ कंपनी अकाउंट्स का नया पार्ट है debentures. Question by last one. Module सब इज्जत से कर. JHP Limited is a company with an authorized capital, share capital of rupees 10 lakh equity shares, 10 lakh in equity shares of 10 each. Of which, sorry, 10 लाख shares है. 10 लाख shares है of 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2016. 10 लाख shares है 10 रुपए के, उसमें से 6 लाख shares ऑलरेडी इश्यू हो चुका है. तो अभी कितना बचे? The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these 10 rupee shares at a price of 14 each. 10 का शेयर 14 रुपए में जा रहा है, 4 रुपया प्रीमियम है. कितना शेयर्स का इश्यू का बात चल रहा है? 1 लाख. तो 6 लाख मिलक का करने की जरूरत नहीं, वो हो चुका. अभी कितने का बात चल रहा है? 1 लाख शेयर्स. The arrangements for payment being as follows: 2 per share payable on application to be received on 1st of July 2016. Allotment to be made on 10th of July 2016, and a further 5 per share including the premium to be payable, and the final call for the balance to be made and the money received by 30th of April. Applications were received for 3,55,000 shares. अब पहली बात तो आपको सब डिविजन लिख देने का. इधर कितने का फेस वैल्यू है देख लो. कितने का फेस वैल्यू है?
₹10 का फेस वैल्यू है कि ₹14 का फेस वैल्यू? ₹10 का है तो ₹4 प्रीमियम है। पहले बेसिक समझो, कितना शेयर्स का इश्यू का बात चल रहा है? 6 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख पहले हो चुका है, अभी बात चल रहा है 1 लाख शेयर्स का, बराबर है। अभी आपका जो सब डिवीजन है एप्लीकेशन पे कितना मंगवा रहे हो आप? ₹2, इधर 5 है विद प्रीमियम, सो आई थिंक इट इज 1 + 4 है ना, और बैलेंस कितना हुआ? 2, 5, 7 हुआ ना। ये एप्लीकेशन हुआ, ये अलॉटमेंट हुआ, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सही बात। अभी एप्लीकेशंस आर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर। आपने कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 1 लाख, लेकिन कितने से ओवर सब्सक्राइब हो गया? 3,55,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आ गया, बराबर है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। दिस इज द प्रेजेंट डे सिचुएशन। ये तो सिर्फ 3.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है, 1 लाख का 3.5 लाख। बट एट प्रेजेंट डे क्या क्या होता है अगर कोई आईपीओ को फॉलो करता रहेगा? एनी गेसेस? 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता। वारी इंजीनियरिंग भी हुआ था, वो बजाज वाला भी हुआ था। तो अच्छा मार्केट में अगर अच्छा कंपनी निकला, कंपनी तो ठीक है लेकिन मार्केट, शादी का सीजन है तो धड़म धड़म धुड़ूम सब पैसा डालने के लिए भागता है, ओके। तो 3-4 गुना तो सारा कोई भी आईपीओ हो जाता है बूमिंग मार्केट में। 10 गुना, 15 गुना, 20-20 गुना भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, 100 गुना भी हो जाता है। तो इधर ऐसा हुआ है। अभी applications of 5,000 shares received allotment in full. So let us divide the shares into category. Let's name them A, B, C. पहला कैटेगरी 5,000 एप्लीकेशन को फुल अलॉटमेंट मिल गया, बराबर है। तो 5,000 को फुल अलॉटमेंट मिल गया, 5,000 का 5,000। ये जो कैटेगरीज है ना प्रेजेंट लेवल में, दीज आर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, HNI कैटेगरी, रिटेल एंड एम्प्लॉय कैटेगरी होता है। तो ये लोग का अलग अलग कैटेगरी होता है। तो कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहा है तो 20,000 रिटेल के लिए रखेगा, 30,000 इंस्टीट्यूशन के लिए रखेगा, 20,000 HNI के लिए रखेगा, बचा हुआ एम्प्लॉय के लिए रखेगा। तो उस कैटेगरी में वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो थोड़ा कोटास बना के रखता है सो दैट सबको चांस मिले कंपनी का हिस्सा बनने के लिए। इज इट क्लियर? नहीं तो क्या अमीर लोग ही पूरा इश्यू खा जाएगा, गरीब लोग को कोई चांस मिलेगा नहीं। इसलिए सबको मिले, जनता को मिले चांस, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, ओके। नाउ इधर 5,000 एप्लीकेशन को 5,000 अलॉटमेंट हो गया, फुल अलॉटमेंट। मतलब ये कैटेगरी में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, लोगों ने कम एप्लीकेशन भरा रहेगा, इसलिए 1:1 के रेशियो में सबको अलॉटमेंट मिल गया। उसके बाद दूसरा वाला एप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर्स received an allotment of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to the applicants. The surplus on application being used to reduce the amount of allotment. तो ये जो दूसरा कैटेगरी है, इसको 30,000 एप्लीकेशंस को 1 for every 2, तो कितना अलॉट किया आपने? 15,000 अलॉट किया, सही बात। और इनका एक्सेस पैसा क्या बोला है? यू डिड नॉट रिफंड बट यू ट्रांसफर्ड इट टू अलॉटमेंट। वही करते हैं आप भी वही करते हैं। कुछ नहीं दिया तो ये कौन सा कैटेगरी है? प्रोरेटा है। प्रोरेटा का पैसा किधर जाता है? अलॉटमेंट में, सही बात। समझा ये पार्ट? अभी लास्ट पार्ट, एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। The money due on allotment was retained by the company, excess being returned to the applicants. Excess being returned to the applicants, and the money on final call was received on the due date. मतलब जो तीसरा कैटेगरी है 3,20,000 एप्लीकेशन बचे, कैसा 320 आप कैलकुलेट कर सकते हो? 355 था, 5 और 30 कितना होता है? 35। 355 minus 35 is 320. 320 एप्लीकेंट्स ने बचे हुए, उनको 1:4 का रेशियो में मिला। मतलब इनको कितना अलॉट हुआ? 80,000 शेयर, राइट। और ये भी आप चेक करो, 80 + 15 + 5,000 is 1 lakh, परफेक्ट मैच होता है, राइट। सॉर्टेड है? हेलो, हाँ जी।
30,000 वाले में क्या हुआ? 30,000 वाले में 1 for every 2 shares था। एप्लीकेशन 30,000 आया। हाँ। और उसमें से उसमें क्या होगा? 1 for every 2 share। So 1 for every 2, 2 को 1 मिला। तो 30 को 15,000 अलॉट किया। और एक्सेस पैसा was transferred to reduce the allotment amount। मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर, रिफंड नहीं किया। वैसे भी रिफंड नहीं करते, अलॉटमेंट में ही डालते हैं। बराबर है। अभी इसका केस में 320 का 80 1:4 का मतलब समझा आपको? 1:4 है। 320 को 80 मिला है, मिला। अभी इस कैटेगरी का भी एक्सेस पैसा है, इनफैक्ट बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा एक्सेस है, क्योंकि 4 गुना होगा सब्सक्राइबर। तो इसका एक्सेस पैसा पहले वो लोग ने कहा ट्रांसफर किया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी भरने के बाद अगर एक्सेस पैसा है तो वो क्या किया है? रिफंड। पढ़ो 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 वापस। 1 for every 4 applied and the money due on allotment was retained by the company, excess being returned to the applicants। मिला? अभी नॉर्मली क्या होता है? पहले एक्सेस और एप्लीकेशन गोज टू अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट पूरा खत्म हो गया तो इट इज नॉट रिफंडेड प्रैक्टिकली, इट गोज टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल खत्म होने के बाद भी पड़ा है तो वो रिफंड हो जाता है। इज दिस क्लियर? तुम्हारा ही सीनियर है। सर को लेके सर बलिया वो 10 मिनट। अभी सुनो, शांति रहो, मेरा बात सुनो। आपका एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट रेशियो इज 1:4। मतलब एप्लीकेशन का नॉर्मली क्या होता है? एक्सेस पैसा गोज टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद भी बच गया तो इट गोज टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके बाद भी बच गया then it is refund। That's what happens practically। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया? आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, अलॉटमेंट के बाद क्या कर रहे? रिफंड कर। तो इसके लिए यहाँ पे दिया, इसके लिए वी आर रिफंडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना अगर ना दिया होता ना तो एक्सेस मनी किधर डाल देने का? फर्स्ट एंड फाइनल। उसके बाद भी बच गया तो उसको क्या कर देने का? रिफंड कर देने का। सुना? तो वर्किंग नोट बनाओ to calculate the refund। Okay, this is for category C। category C, category C में application receipt कितना होगा? ये लोग ने 3,20,000 अप्लाई किया है, इंटू 2 तो 6,40,000 हुआ। हेलो, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000 हुआ। अग्री? अरे भाई 320 का एप्लीकेशन आया है तो इन्होंने इंटू 2 6,40,000 भरा होगा ना, माइनस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना था इनसे? इनको 80 अलॉट हुआ है तो 80 इंटू 2 1,60,000 होता है। करेक्ट? राइट। अभी एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना है? 4,80,000 है। कितना है? 4,80,000 है। इतना एक्सेस पैसा आ गया। लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, इस कैटेगरी का अलॉटमेंट रिक्वायर्ड कितना होगा? 80,000 इंटू 5 होगा, दैट इज 4 लाख। नॉर्मली क्या है? इधर खत्म हो जाता है एंड दे हैव टू पे द बैलेंस मनी। जैसे ये कैटेगरी देखो, बी वाला, एक सेकंड, बी वाला कैटेगरी देखो, 30,000 इंटू 2 60 बना है, रिक्वायर्ड है 15 इंटू 2 30, एक्सेस हुआ 30,
लेकिन अलॉटमेंट में कितना चाहिए 15 into 5 75 एक्सेस सिर्फ 30 है और चाहिए 75 वो लोग भर देगा बाकी का पैसा मतलब इस कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट में खत्म हो है बट इस कैटेगरी का देखो 640 minus 160 एक्सेस है 480 अलॉटमेंट में कितना चाहिए 4 लाख पूरा अलॉटमेंट घुस गया फिर भी एक्स्ट्रा बच गया आर यू अंडरस्टैंड नॉर्मली अलॉटमेंट इधर ज्यादा होता है तो एक्सेस खत्म होने के बाद these guys have to pay the money that's what happens usually but this is many times oversubscribed so क्या हुआ एप्लीकेशन तो एडजस्ट हो ही गया उसके बाद एक्सेस बचा उसके बाद पूरा अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया उसके बाद भी एक्सेस बच रहा है और कितना एक्सेस है ये 80,000 व्हाट इज द कंपनी रिफंड क्यों रिफंड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द क्वेश्चन वाज साइलेंट अबाउट इट व्हाट यू वुड हैव डन फर्स्ट कॉल में डाल देते मतलब 80,000 वालों को फर्स्ट कॉल में कम भरने का जैसे अलॉटमेंट में कम भर देंगे वैसे फर्स्ट कॉल में कम भर समझ आया बट इधर बोल रहे हैं क्या रिफंड तो रिफंड अमाउंट आपका कितना होने वाला है यहाँ पे 80,000 सॉर्टेड है पक्का बाकी देयर आर नो कॉल्स इन अरियर्स ऑल द मनीज आर रिसीव्ड और खाली डेट्स का ख्याल रखना है 5 एंट्रीज का ही सर सब होमवर्क ने शट अप नाउ फर्स्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव्ड मुझे बताओ कब हुआ 1 जुलाई 2016 को आ रहा है पैसा मिला हेलो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सही बात बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3,20,000 शेयर्स राइट इनटू कितना sorry 3,55,000 into 2 7,10,000 am I right ये आपका हुआ एप्लीकेशन रिसीव्ड बराबर है ये जो पूरा ग्रुप था ना ऑल वेयर ऑलमोस्ट 260 प्लस अभी इंटर कर रहा हूं नाउ बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख दिस इज 7,10,000 बराबर है मिला अभी इसके बाद यू गो फॉर एप्लीकेशन ट्रांसफर इधर ही सारा खेल है इसमें डेट क्या रखोगे आप देखो क्या दिया अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th ऑफ जुलाई दिख रहा है मैंने आपको डेट्स का एक चीज बताया था जिस डेट पे अलॉटमेंट ड्यू होता है वो डेट पे एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देने का कुछ ना दिया हो तो 10 जुलाई 16 को आपका ट्रांसफर एंट्री होगा क्या ये यहाँ पे गम्मत है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वेरी गुड व्हाई टू बैंक रिफंड बॉडी में रिफंड का कुछ ना दिया होता क्वेश्चन में तो फर्स्ट कॉल अच्छा फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर एक्सेस होता तो सेकंड कॉल के बाद भी होता तो ओके इधर एक ही कॉल है तो ये सब में फर्स्ट कॉल के बाद होता तो रिफंड इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इधर ही अरे यार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक और फिर जब बैंक टू फाइनल कॉल मारोगे उसमें इतना पैसा कम कर इसमें सारा एडजस्टमेंट इधर ही कर रहे हैं जैसे इधर अलॉटमेंट में डाला ना वैसे इधर ही टू फर्स्ट कॉल आ जाएगा समझा और फर्स्ट कॉल के ऊपर बचा तो रिफंड सुना वैसा कब होगा कोई बता सकता है मुझे ऐसा सिचुएशन कब होगा कि फर्स्ट कॉल के ऊपर भी आया और रिफंड किया 10 टाइम्स 8 टाइम्स 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया तभी ऐसा हो पूरा एडजस्ट होने के बाद भी रिफंड सुना चलो लिख दो एप्लीकेशन में कितना 7,10 तो कैपिटल कितना बोल के देखो 1 लाख शेयर्स है इंटू 2 रुपए 2 लाख ही कर सकते हो बराबर ट्रांसफर अमाउंट
एक मिनट, बोलो क्या डाउट है, बोलो। अरे नहीं वो अमाउंट का है, आप लिख लो। एक मिनट, ये 1 लाख इंटू तो 2 लाख मिला। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, ध्यान से देखना सब लोग। ये वाला कैटेगरी का कितना जाएगा अलॉटमेंट में? 4 लाख, पूरा एडजस्ट हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि 80,000 रिफंड किया है, तो पूरा एडजस्ट कितना हुआ इसका? 4 लाख एडजस्ट हो गया। अच्छा, प्लस इसका भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, इसका कितना एक्सेस शेयर का? 15,000 इंटू 2, जो आप 12th में करते हो। 15,000 इंटू 2 कितना होता है? 15,000 इंटू 2 30, 30,000 और 4 लाख, तो 4 लाख 30, तो कितना एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में? इट विल बी 4 लाख फ्रॉम कैटेगरी सी प्लस 30,000 फ्रॉम कैटेगरी बी, so total is 4 lakhs 30,000 and refund amount कितना है? 80,000 ये रहा, समझा? अभी नॉर्मली आप 12th में क्या करते थे वो भी बता देता हूँ। आप क्या करते थे? 2,40,000 एक्स्ट्रा है, 2,40,000 इंटू 2 कितना होता है? 4,80,000, तो आप अलॉटमेंट में 4,80,000 डाल देते, बट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साला अलॉटमेंट में 4 ही लाख चाहिए, 4,80,000 डाल के करोगे क्या? अलॉटमेंट इनसे पूरा का पूरा कितना चाहिए? 4 लाख। हाउ कैन आई ट्रांसफर 480 टू अलॉटमेंट? समझा? अलॉटमेंट पूरा एडजस्ट हो गया है, उसके बाद भी एक्सेस बचा है, तो हाउ मच शुड आई एडजस्ट इन अलॉटमेंट? नॉट 480, हाउ मच? 4 lakhs from this category and 30,000 from this category. इसमें क्यों मैंने 15 into 2 किया? क्योंकि 15,000 यही है, इसमें तो इनसे कितना एक्सपेक्टेड है? 75,000 एक्सपेक्टेड। इधर नॉर्मल है, क्योंकि ये ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ था, ये 2:1 है, ये बहुत गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, इसके लिए तकलीफ इधर है 4:1। ये समझा एंट्री पहले? पक्का? देखो मैच करके देखो, 7,10,000 हो रहा है। अभी थर्ड एंट्री कब आएगा? डेट सेल 10 जुलाई 16, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 वर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 वर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम, सही बात? हेलो प्लीज फोकस। अलॉटमेंट में कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1 लाख की 3,55,000 की 320, हाउ मच? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू कितना? 5, बराबर है ना? 5 लाख टू कैपिटल में कितना? 1 लाख इंटू 1, that is 1 lakh, and to security premium it is 1 lakh into 4 lakhs. Mila, this is allotment due. Now what is the date for allotment received? April तो वो है अलॉटमेंट। अच्छा, ये फिर रिसीव का ही डेट है, इधर डेट ही नहीं है, ये उड़ा दो, इधर डेट ही नहीं है, डेट ही नहीं है, अलॉटमेंट रिसीव का ही डेट है सीधा। तो अलॉटमेंट रिसीव का डेट इज 10 जुलाई, अलॉटमेंट रिसीव का ही डेट दे दिया। अभी ध्यान से एंट्री क्या होगी? सबने सब भरा है, नो कॉल इन अरियर, तो बैंक तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सोच के बताना कैसे लिखोगे। विल यू राइट फुल 5 lakhs? नो, 5 lakhs माइनस 4,30,000, तो कितना आएगा? 70,000। ये 70,000, कैन यू टेल मी विच कैटेगरी हैज पेड? ए एंड बी। इसमें से ए ने 5,000 इंटू 5 25 भरा है, और इसका 45 भरा है, क्योंकि 30 एक्सेस था, तो 75 माइनस 30। जस्ट टू अंडरस्टैंड, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये लोग ने 5 इंटू 5 25 भरा होगा, और ये लोग ने 45 भरा होगा, क्योंकि इनका 30 एक्सेस था। सी ने कुछ भरा ही नहीं है अलॉटमेंट में, क्यों? पूरा ही एडजस्ट हो गया। तो बैंक टू अलॉटमेंट इट इज 70,000, अलॉटमेंट रिसीव। फिर आएगा आपका फाइनल कॉल का
डेट, ये सेम डेट आप डाल सकते हो। फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नोट बनाया ना सबने, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा, 1 लाख शेयर्स पे कितना, 7 रुपया, दैट इज 7 लाख। And then you receive the money. So are there any call in arrear? This is on 30th April. Bank to equity share first and final call. बताओ किसी का भी एक्सेस है? अरे इसका है ना 80,000 रिफंडेड। अगर ये 80 आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते तो माइनस हो जाए, यहाँ पे एडजस्ट किया ही नहीं, तो सब लोग सब भरेंगे तो कितना रिसीव करेंगे, 7 लाख। Got it? Is that clear? Hello? अभी अभी एक लास्ट पार्ट अपना बाकी है, वो हम लोग लेने वाले हैं on Friday and I'm going to start with debentures. Friday